Welcome to Rodriguez Classes. Don't forget to subscribe, like this video, and leave a comment down below. Let's start learning. Hello students, today we will be studying about the nature of the roots. It means when we solve the quadratic equation and get the answer, that is the roots of the equation, what type of roots we are going to tell. So it all depends upon the value of the discriminant, that is d, which has a formula b square minus 4ac. So what is the value of it will decide on what type of roots we get. So let us see here. If d value is greater than 0, मतलब d का value अगर 0 से बड़ा है, तो जो nature of the roots रहेगा, दोनों roots जो रहेगा वो real numbers रहेगा और दोनों unequal आएगा, मतलब दोनों roots का आंसर अलग अलग रहेगा. अगर हम देखते हैं d equal to 0, मतलब d का value कैलकुलेट करके 0 आ गया, then the roots are real and equal, मतलब दोनों आंसर real number रहेगा और the same answers we will get for both the roots. d less than 0, when d is less than 0, the roots are unreal, because you know that the formula of quadratic equation is so if this d value is coming in negative, it means you cannot take out the square root of it in terms of real numbers. So that is why we get the roots as unreal and unequal. Then two extra I have taken here, okay. If d is a perfect square, you get this number as a perfect square. So you can take out the square root of it. So the answer, the roots which will come, both of them will be rational number. Okay, so but the d has to be a perfect square. So you take out the square root, root number will not be there. And if d is not a perfect square, so here you don't get a perfect square, so some number will be inside the root, and so the answer comes, the root comes as irrational number. We will be seeing sums based on this nature of the roots. So take a note of all these part. Okay, very important, you need to remember it, and then only you can deal with the sums based on the nature of the roots. Let us see few sums based on it. So let us now take a sum upon the nature of the roots. This is the question which goes like this. Show that the equation x square plus ax minus 4 has real and distinct roots for all real values of a. Means whatever are the values of a, what we are going to get in this equation is that we always get real and distinct root. Distinct root means unequal roots. So what we do, we go to find the value of d first. So I write the formula for d, which is d is equals to b square minus 4ac. I have used capital alphabet because you can see small alphabet is already used there. So x square has a coefficient 1 that will go for a. X has a coefficient small a which will go for b, and c value is minus 4. So we put it over here. So we get a square minus 4 into 1 into c value is minus 4. So we get it as a square plus 16. Now you take any value in place of a, any real number, squaring will make it a positive value only. And positive plus a positive 16 will result in always a positive answer, which means greater than 0. So therefore d is greater than 0. Hence roots are real and distinct. In this way, this sum is done. So let us see this sum now. It says for what value of k, the equation k minus 12x square plus 2k minus 12 x plus 2 equals to 0 has equal roots. So question has already told us that the roots are equal. So we need to take the condition for that. And then we need to find the value of this k. Follow the solution. At the end, a very important part will come. You have to be careful about that. Otherwise, marks gets cut. So you can see a value is k minus 12. B value is 2 times of k minus 12 and c value is 2. So we start by writing for the condition given that the roots are equal. So we will write for equal roots. We will mention here d is equals to 0.
It means b square minus 4ac is equals to 0. We put the value of b, which is 2 times of k minus 12 square of this. So use a curly bracket, minus 4 into a value is k minus 12. And then you have c value as 2 and then equal to 0. This will become 4 k minus 12 whole square minus, I will be keeping this one as it is. So you can see if I am keeping as it is, you can see 4 is coming common from both and k minus 12 is also coming common. तो चलो कॉमन लेते हैं, 4 k minus 12 को कॉमन ले लो, तो यहां से k minus 12 होल स्क्वायर है तो एक बार k minus 12 बचेगा, यहां से 4 कॉमन हो गया, k minus 12 कॉमन हो गया तो सिर्फ 2 बचा और ये माइनस है तो -2 हो गया। तो हमको इसको स्क्वायर करके नहीं सॉल्व करना पड़ा, कॉमन लेने से आसानी से हो गया। अब ये 4 जाएगा 0 के पास तो 0/4 हो जाएगा 0। तो वी कैन डू दिस आइदर k minus 12 इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट दे दिया है हमको सॉल्व करके -14, तो k minus 14 इक्वल्स टू 0। अब k इक्वल्स टू 12 मिलेगा यहां से और यहां से मिलता है हमको k इक्वल्स टू 14। इसको आंसर लिख के नहीं छोड़ना। अब ध्यान से देखो, अगर k 12 है तो यहां पुट करो 12 minus 12 0x स्क्वायर, और हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a होता है वो 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये आंसर रिजेक्ट होगा, तो इसको रिजेक्टेड लिख दो और ये मेरा k इक्वल्स टू 14 जो है यही आंसर होगा। तो ए सम्स में जब भी k का वैल्यू या कोई और वेरिएबल का वैल्यू निकालता है, ध्यान देना है इक्वेशन में पुट करके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट सम देखने से पहले एक मैसेज, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो जरूर याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और प्लीज कमेंट्स छोड़ो उसमें, अगर कुछ क्वेश्चंस भी है डाउट में तो उसको भी पूछ सकते हैं कमेंट्स का थ्रू। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस bcx प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, शो दैट either a equals to 0 or a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। तो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में तो हम लोगों को दिया हुआ है फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग लेंगे d इज इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 0 मतलब हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो हम लोग b का वैल्यू पुट करते हैं -2 a स्क्वायर माइनस bc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह में है c स्क्वायर माइनस ab इंटू c के जगह में है b स्क्वायर माइनस ac एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर आपके लिए 4 हो जाएगा। हम लोग अब इसको यहां एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर का स्क्वायर a4 हो गया, यहां पर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया माइनस 2ab मतलब 2a स्क्वायर इंटू bc, सो a स्क्वायर bc माइनस a वाला 4 है, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर c स्क्वायर इंटू माइनस ac हो गया माइनस ac क्यूब, फिर माइनस ab इंटू बी स्क्वायर हो गया माइनस ab क्यूब, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और ab इंटू ac हो गया a स्क्वायर bc इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको पहले लिखेंगे a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर bc, फिर इसमें जो बचेगा माइनस है और फिर ये पार्ट है तो हम लोग को साइन चेंज करके लिखना होगा, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस AC क्यूब प्लस AB क्यूब और ये हो गया माइनस A स्क्वायर BC इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ध्यान दो, A प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर यहां पर माइनस 2A स्क्वायर BC और माइनस A स्क्वायर BC है, तो दोनों माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा और इस 4 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर A4, फिर माइनस A स्क्वायर BC और माइनस 2A स्क्वायर BC माइनस A स्क्वायर BC माइनस 3A स्क्वायर BC। फिर है मेरे पास बचा हुआ प्लस AC क्यूब को लिखो, फिर प्लस AB क्यूब को लिखो, और ये जो टर्म है इसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो दैट गिव्स मी इक्वल्स टू 0। अब ये सब में A कॉमन आ रहा है, तो हम A कॉमन लेंगे तो बचेगा A क्यूब माइनस 3ABC प्लस C क्यूब और यहां से बचा B क्यूब। तो अब हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट आ गया है, तो हम लोग इसको यहां पर लिखेंगे आइदर A इक्वल्स टू 0 और इसको लिखो A क्यूब माइनस 3ABC प्लस C क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये तो रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर। अब इसको हम जस्ट अरेंज करेंगे, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब और माइनस 3ABC को उधर ले जाएंगे, तो ये मेरा सम्स हो गया, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये आपको सम समझ में आया होगा, इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए दोबारा देखने के बाद। इस क्वेश्चन को जो लिए हैं फोर्थ वाला, इसमें एक स्पेशल चीज सीखने मिलेगा जो बहुत लोग गलती करता है, इसलिए इसका सोल्यूशन को ध्यान से देख के आखिरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। मतलब इस p का वैल्यू फाइंड करना है, रियल रूट्स कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या होगा निकालना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, क्या पता है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में रूट्स रियल रहता है, इसलिए इसको लेंगे। अब b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b के जगह में p है तो इसको p स्क्वायर लिखे माइनस 4 इंटू a के जगह में 2 है और c के जगह में 8 है, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टू द 8, 8 8 द 64 आ गया। अब हम लिखेंगे p ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर 64। अब रूट 64 का वैल्यू प्लस 8 माइनस 8 दोनों हो सकता है, तो अभी हम इसको लिख देते हैं प्लस माइनस 8। अब समझना है, अभी देखो p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 8 है, तो अगर हम मान लो कि लेके चलते हैं p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8, तो ग्रेटर देन माइनस 8 एक वैल्यू होगा माइनस 7। माइनस 7 को यहाँ पुट करो, माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन 49 64 से कहाँ बड़ा है। इसका मतलब अगर हम ऐसी करके आंसर लिख के छोड़ते हैं तो ये आंसर गलत है। इसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से समझो, p ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 8 लिखो, लेकिन जब माइनस 8 लिखेगा तो इसको लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8 करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको चेक करके देख सकते हैं, माइनस 8 से लेस देन मतलब माइनस 9 होगा, माइनस 9 का स्क्वायर फाइंड करो दैट इज 81, तो 64 से बड़ा है। तो इस तरह का सम में याद रखना है कि इस वे से आंसर को नहीं छोड़ना है, ये गलत होगा। जब हम माइनस वाला लेंगे तो ये साइन को बदल के लिखना है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह का सम में इसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स में पसंद आया होगा, तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पर लाइक और कमेंट कीजिए और इंतजार कीजिए और भी वीडियोस का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। थैंक यू।